Good morning, everyone. Today we will discuss some sample questions. So, our first question is: the human hand, cat paw, and the horse foot, when studied in detail, shows the same structure of bones and point towards the same origin. So, what do you conclude from this? So, we can conclude that it is a course of evolution. So, they have modified to perform different function. एक ये एक तरीके का एवोल्यूशन होता है जिसमें इनको मॉडिफाई करा जाता है कि वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करें. Now, our second question is: what is the term given to such structures? हम ऐसे structures को किससे जानते हैं? These are we will known these types of structure by the name of homologous organ. हम इन्हें homologous organ के नाम से जानते हैं. Let's move to our next question. Second question. In the test tube A and B shows below, yeast was kept in sugar solution. Which products of respiration would you expect in test tubes A and test tube B? यहाँ पर हमने दो टेस्ट ट्यूब ली रखी है जिसमें हमने शुगर सॉल्यूशन रख रखा है, भर रखा है, और जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें एक ऑयल फिल्म है और टेस्ट ट्यूब बी में और टेस्ट ट्यूब ए में ईस्ट है. तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन होगा इनके अंदर, तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा और टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा. सो द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन टेस्ट ट्यूब ए इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, whereas the product of respiration in test tube B is carbon dioxide plus water. Now let's move to our next question. Question number third. Write one feature which is common to each of the following pairs of term organs. Our first question is glycogen and starch. तो ग्लाइकोजन और स्टार्च में एक कॉमन फीचर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. जो हमारा और वो कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? स्टोरेज प्रोडक्ट्स में वगैरह. वी कैन फाउंड इन स्टोरेज प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज एंड ऑल, ग्लूकोज, सुक्रोज. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन. क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या कॉमन होता है? पिगमेंट्स, जो किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, और क्लोरोफिल हमें प्लांट्स में मिलता है, और वही हीमोग्लोबिन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है. Third, gills and lungs. Gills and lungs are the respiratory organs, as we all know that. Gills और lungs क्या है? Respiratory organs. और ये किस लिए यूज आता है? For exchange of gases. Fourth, arteries and veins. आर्टरीज और वेन्स हमें किस में मिलती है? वेसल्स में. क्या होता है वेसल्स? क्या होता है? ब्लड. मतलब वेसल्स मतलब ब्लड, जो किस किस काम में आती है? टू सर्कुलेट द ब्लड और पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. Arteries and veins are used to circulate the bloods. Let's move to our next question. Label the given diagram. So, the first part is stigma. Stigma क्या होता है? Stigma, this is found at the tip of the style. It forms the head of the pistil, and the stigma contains a sticky substance whose job is to catch pollen grains from different pollinators or those dispersed through the vents. They are responsible to begin the process of fertilization. Stigma mainly किस लिए responsible होता है? For the process of fertilization. Now let's discuss about anther. What is anther? Before discussing about anther, we will discuss about stamens. What is stamens? Stamen होता है, these are the male parts of the flower. Many stamens are collectively known as androcynes, and they are structurally divided into two parts, filaments and anthers. जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है एंथर. तो अब देखते हैं एंथर क्या होता है. इट इज़ द हेड ऑफ द स्टेमन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द पोलन which is transferred to the pistil or a female parts of the same or another flower to bring about fertilization. अभी हमने स्टिग्मा पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं एंथर. एंथर क्या होता है कि इसका जो ये पोलन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है पिस्टिल को. जो पोलन प्रोड्यूस होता है वो पिस्टिल को ट्रांसफ़र करता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फोर्थ, दैट इज़ फिलामेंट. Filament is the part that is long and slender and attached to anther to the flower. तो फिलामेंट होता है वो किससे अटैच? एक तो लंबा होता है वो, और वो स्टेम एंथर से अटैच होता है.
Now let's discuss about style. What is style? That is third point. Style. It is a longer slender stalk that holds the stigma. Style क्या करती है? स्टिग्मा को होल्ड करके रखती है. Once the pollen reaches the stigma, the style starts to become hollow and forms a tube called the pollen tube. जैसे ही पोलन स्टिग्मा के पास पहुंचता है तो स्टाइल अपना काम करना चालू कर देती है और ट्यूब को होलो ट्यूब फॉर्म करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब, विच टेक्स द पोलन टू द ओवरीज टू एनेबल फर्टिलाइजेशन. वो क्या करता है? उसे पोलन को, जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन को ओवरीज तक ले जाती है ताकि फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट कर सके. नाउ आवर सेकंड इज पीटल. व्हाट इज पीटल और अ पिस्टिल? Pistil, this is a form of female parts of the flower. A collection of pistil is called the gynocene. Now sixth is ovary. What is ovary? They form the base of the pistil and the ovary holds the ovules. ये क्या करते हैं? बेस बनाते हैं ओवरी का और ये एक मतलब ओवरी होल्ड करती है ओव्यूल्स को. Now we will discuss about sepals. What is sepals? These are the small leaf-like parts growing at the base of the petals. ये क्या है? छोटी पत्तियों की तरह है जो ग्रोइंग जो कहाँ पे होती है? बेस ऑफ द पेटल्स के बेस पर. एंड दे फॉर्म द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर. और वो जो आउटर एरिया होता है फ्लावर का वो फॉर्म करती है. पेटल्स. पेटल्स क्या होता है? पेटल्स आर द दिस लेयर लाइज जस्ट अबव द सेपल लेयर. जो पेटल होती है वो कहाँ होती है? जस्ट अबव द सेपल लेयर. एंड दे आर ऑफन ब्राइट इन कलर एज देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स. और ये क्या होती है? मोस्टली ब्राइट होती है, बहुत ब्राइट कलर में होती है क्योंकि इनका मेन काम ही यही होता है कि वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे, सच एज इंसेक्ट. पोलिनेटर्स किसे कहते हैं? इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा. एंड द पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला. और हम पेटल्स को क्या कहते हैं? मोस्टली कोरोला भी कहते हैं. Now next let's move to our next question. Following are two examples of plant movement. Now first question is what is stimulus which is common for both the movements. हमारा पहला मूवमेंट है सेंसिटिव प्लांट्स को लेके और सेकंड मूवमेंट है पी प्लांट्स को लेके. उन दोनों में कॉमन क्या था? टच, मतलब छूना. उन प्लांट्स को छूना कॉमन था. Does the movement take place away or at the point where stimulus is received? Mention separately for both. जब मतलब हमने क्या पूछा था? मूवमेंट टेक प्लेस अवे और जहाँ पे स्टिमुलस रिसीव्ड होता है तो प्लांट ए यानी सेंसिटिव प्लांट में तो क्या होता है? वो अवे होता है. मूवमेंट क्या होता है? अवे, मतलब दूर दूर हो जाता है. और वही जो पी प्लांट्स है उनमें क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन स्टिमुलस रिसीव्ड. Now question number third. Give one reason for the movement in each case. तो सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट का एक रीज़न क्या है? चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर और अ ट्रिगर प्रेशर. मेन रीज़न है इसका चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर. और वही पी प्लांट का रीज़न क्या है? मूवमेंट का रीज़न अनइवन ग्रोथ. अनइवन ग्रोथ ऑफ प्लांट और अ ग्रोथ. थैंक यू.